ये भी याद होगा कि जब कोविड वैक्सीन 19 पैंडेमिक राइट अपनी पीक पे था उस वक्त बहुत इंडिया हेल्प ने करছে 2 मिलियन कोविड 19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये एज ए गिफ्ट दी थी टू बांग्लादेश। तो इंडिया की साइड से आप अगर देखो ना तो बांग्लादेश के গাইস लिए जो भी अच्छा সবাই ভুলে নাই ঠিক আছে কতিপয় কিছু মানুষ ইন্ডিয়ার হেল্প ভুলে গেছে তার মানে সবাই কিন্তু ইন্ডিয়ার হেল্পটা ভুলে নাই স্পেশালি আমি তো ভুলি নাই হ্যাঁ পার্সেন্টেজটা হয়তো বেশি হইতে পারে মানে ইন্ডিয়ান হেটার্স বাংলাদেশে আমাদের দেশে কিন্তু পার্সেন্টেজ সেদিক থেকে আমাদের মতো অনেক মানুষ রয়েছেন যারা হচ্ছে ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করে শুধু হিন্দু মুসলমান এটা যে বলে সে হচ্ছে বোকা চরম বোকা খেলা খেলা ধর্ম ধর্ম আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আমি তারা তো হিন্দু না আমি কেন সাপোর্ট করি ভালো লাগে তাই তো যে পার্সোনাল অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার থাকতেই পারে কিন্তু ইন্ডিয়ার প্রতি এত বিদ্বেষ দেখায় নয় এত হিংসা দেখায় নয় হ্যাঁ মানে হিংসা পতনের মূল মনে রাখতে হবে ঠিক আছে नमस्ते गाइज दिस इज शेतु सरकार एंड वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो तो गाइज आई एम फ्रॉम बांग्लादेश बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम एंड गाइज ऑल टाइम आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट इंडिया we love you India all time respect seriously and guys already you are asking a two question bro what's your name and are you Hindu or Muslim guys this is Shetu Sarkar and I am a Hindu so I'm so lucky because I'm a Hindu seriously so joy Sri Ram joy Sri Krishna and guys if you need please subscribe my YouTube channel subscribe my second blog YouTube channel and guys basically I'm going to react on a video and basically title টা হচ্ছে আমার মনে নাই এই মুহূর্তে বাট টাইটেল যেটা বলতেছে আসলেই বাংলাদেশি কি ইন্ডিয়া অ্যান্টি সেটা কি না আসলে আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট সিরিয়াসলি অল টাইম আই লাভ ইন্ডিয়া সিরিয়াসলি বেশি বলতেছি গাইজ অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন অ্যান্ড অল ক্রেডিট গোজ টু ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ইউটিউব চ্যানেল সো চলো শুরু করি লেটস স্টার্টেড জয় হিন্দ জয় বাংলা नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं इज प्रशांत देयर अवन। एन नाउ एंटी रिसेंटली इस इंडिया टॉपिक से फीलिंग इन रिलेटेड बांग्लादेश बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि वर्ल्ड कप वीडियो जो सामने आई है उसको देखकर एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया इंडिया में। लोग चिंतित हैं कि क्या बांग्लादेशी ओवरऑल इंडियन से नफरत करते हैं, क्या नहीं, एक नहीं, बहुत ज्यादा no. स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है गाइस बांग्लादेश गाइस में। गाइस Now, ये गाइस जो क्वेश्चन একটা কথা বলি যে সুশান্ত ভাই যেটা বললো সুশান্ত ভাই না স্যার আই এম সরি দেখো বাংলাদেশের অল বাংলাদেশ আর নট ইন্ডিয়ান হেটার্স সিরিয়াসলি জাস্ট লাইক মি আই এম অলসো বিগ সাপোর্টার ফ্রম মানে কি বলে ইন্ডিয়ার বিগ সাপোর্টার অল টাইম আইল সাপোর্ট অ্যান্ড প্রিভিয়াস ভিডিওতে তোমরা দেখে বুঝতে পারতেছো বাট বেসিক্যালি আমি সেভাবে বলতে পারতেছি না এখন আমার হচ্ছে অনেক টায়ার্ড লাগতেছে আর আমি খুব জ্বরে ভুগতেছি কিছুদিন এখন সুস্থ বাট সবাই আমার জন্য প্রে করো আর আমি একটা কথাই বলি অল টাইম আইল সাপোর্ট ইন্ডিয়া আনডাউটলি আর কতিপয় মানুষের জন্য আজকে সকল বাংলাদেশির পর দোষারোপ আরোপ করা হচ্ছে দোষারোপ দেওয়া হচ্ছে বাট সবাই কিন্তু সেম না আমি বারবার একটা কথা বলতেছি है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन से भी ऊपर का है। किसी और कंट्री के साथ भी एटलीस्ट इन साउथ एशिया इंडिया का उस लेवल का ट्रेड है नहीं। उसके अलावा आप अगर देखें तो बांग्लादेश जब भी कठिनाई में होता है, इनको पैसा चाहिए होता है, इन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है तो इंडिया इनकी हेल्प को आता है। आई मीन वैसे आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो लिटरली बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का क्रिटिकल रोल था। इंडिया ने ही आप कह सकते हैं रास्ता बनाया था बांग्लादेश की फॉर्मेशन का। और इंडिया एक्चुअली वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और आज के समय 2023 में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश काफी बार भारत की तरफ देखता है जब इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होते हैं और इंडियन असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और तो और जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आपको पता होगा बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। यूएसए ने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हैं ये फेयर तरीके से नहीं होते, इस वजह से यूएसए ने थोड़े बहुत सैंक्शंस भी इम्पोज किए थे कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर। तो जब ये सब कंट्रोवर्सी सामने आई थी ना तब भी बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ देखा था कि इंडिया हेल्प करेगा हमें यूएसए से बात करने में। इंडिया की लीडरशिप के अंडर हम यूएसए से प्रॉपरली बात कर पाएंगे और हो सकता है कि जो भी सैंक्शंस हैं ये रिमूव भी हो जाएं। और आप सबको ये भी याद होगा कि जब कोविड 19 पैंडेमिक अपनी पीक पे था उस वक्त इंडिया ने 2 मिलियन कोविड 19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये एज ए गिफ्ट दी थी टू बांग्लादेश। तो इंडिया की साइड से आप अगर देखो ना तो बांग्लादेश के लिए जो भी अच्छा সবাই ভুলে নাই ঠিক আছে কতিপয় কিছু মানুষ ইন্ডিয়ার হেল্প ভুলে গেছে তার মানে সবাই কিন্তু ইন্ডিয়ার হেল্পটা ভুলে নাই স্পেশালি আমি তো ভুলি নাই তো যারা ভুলে নাই এদের
কি বলবো, কিছু हम कर বলার নাই। सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। और इंडियन पॉपुलेशन में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश की तरफ कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आपको नहीं मिलेगी। आई मीन मैं ये कहूंगा हम जरा सोचते नहीं है उनके बारे में, यही कहूंगा थोड़े बहुत इंडिफरेंट है। बट कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हार रही हो और इंडिया में ना लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर देख रहे हो और इंजॉय कर रहे हो कि हाँ बांग्लादेश की हार हो रही है, बांग्लादेश के लोग सैड हैं। ना रिसेंटली ना बांग्लादेश में यही हुआ। इंडिया जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बांग्लादेश में हुए थे बड़े स्केल पर सेलिब्रेशंस। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক ঘন আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং মিলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাদের থোড়াই কেয়ার বাংলাদেশের ভক্তদের। নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অলবত মুহূর্ত। আজকে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য ঈদের দিন। কাজ দেখা গেছে ফাইনাল ম্যাচে 1,30,000 দর্শকের এগেইনস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতলো। অবশ্যই একটা ভালো কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার একটা চার ম্যাচে মনে হচ্ছে সাকিব শান্ত চার ম্যাচে ভাই পরম জুলাই গেছে নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচি লালুলাস। পাশে থেকে এসেছিলাম বলতে কোচিং বাকিতে কারণ ইন্ডিয়া হারটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। हाँ, बिल्कुल ये বাপরে। वीडियो बहुत जरा अजीब है। कोई भी इसको देखेगा तो ऐसा उसको लगेगा कि इंडिया बांग्लादेश की कोई वॉर हो रखी है इन द पास्ट, या फिर जो इजराइल हमास का बीच में जो इशू है वैसे इंडिया बांग्लादेश का इशू है। जबकि आप अगर देखो दोनों कंट्रीज की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिफाइंड है, कोई डिस्प्यूट बचा नहीं है। दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करती है। बांग्लादेश को लिटरली फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी नेपाल द्वारा वो इंडिया से होकर आएगी। आई मीन हम लोग इतना ज्यादा हेल्प करते हैं बांग्लादेश, उस सब के बाद बांग्लादेश में ऐसी नफरत देखना टुवर्ड्स इंडिया, इट इज क्वाइट शॉकिंग। और मैं देख रहा था कई लोग हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश की एक ऑथर है, कंट्रोवर्शियल ऑथर तस्लीमा नसरीन, इन्होंने ये बात ट्वीट करी थी कि बांग्लादेश का जो यूथ है ये खुश है क्योंकि इंडिया हार गया था। ये लोग इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों है जबकि इंडिया ने लिबरेट करवाया था इनकी कंट्री को, और ये डिपेंड करते हैं ऑन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो। ये बात भी सही है, इंडिया से बहुत सारी जो मूवीज आती हैं, शोज आते हैं, ये भी बांग्लादेश में काफी पॉपुलर है। तो जब इंडिया बांग्लादेश के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव स्टेप लेता है तो बांग्लादेश में नफरत क्यों है फॉर इंडियंस? वेल, इसका आंसर देखिए हमको मिलता है एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगेन देखो, कोई नीचे बिगोटेड कमेंट करेगा कि जी रिलीजन का यहाँ पे इशू है, रिलीजन की वजह से ये सब कुछ। आप देखोगे इंडिया को बहुत पसंद किया जाता है अफगानिस्तान की आम जनता द्वारा। आप गल्फ कंट्रीज में देख लो, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप मलेशिया में देख लीजिए, ओवरऑल जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती। सेम चीज आपको मालदीव्स में भी मिलेगा, वहां पे कोई लीडर आ जाए वो अलग बात है, बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक इंडिया को पसंद करती है। इवन इंडोनेशिया में भी आप देख लीजिए, जो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इंडिया के प्रति आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा, लोग पॉजिटिवली देखते हैं इंडिया को। तो जो बांग्लादेश का केस है ना, यहाँ पर देखिए एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको कहा जाता है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगर हम वर्ल्ड मैप देखें ना तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूएसए है, यूएसए के नीचे आपको मिलेगा मैक्सिको। ना मैक्सिको अपने आप में काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इनकी बड़ी आबादी है, इनकी ग्रोइंग जीडीपी है, बट मैक्सिकन्स हमेशा दबा हुआ फील करते हैं अमेरिकन्स के अंडर। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा भाई सा है हमारे ऊपर बैठा हुआ है, और उनको लगता है कि कभी वो ज्यादा रीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएस एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो काफी बार ना सेम पैरेलल्स जो मैक्सिको और यूएस में एग्जिस्ट करते हैं इन्हें अप्लाई करके देखा गया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में, कि बांग्लादेश के लोग भी ना देखो इंडिया की जो एक बहुत ज्यादा पावर है रीजन में, जो कंप्लीट डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस, उसके अलावा इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो सब देखकर काफी बार आप कह लीजिए गुस्सा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया इवन दो फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल में हारा, बांग्लादेशीज ने इंडिया की हार को जरा सेलिब्रेट किया है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियाज विन। और एक बार को यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश हमें पसंद करता है नहीं करता, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उनको जो सोचना है सोचने दो। करी, देखो सबाई मैं ये कहूंगा करे कि ना आज के आने समय के, दामी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ना वो जमाने गए जब आप कह सकते हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है। आज के समय इंटरनेशनली जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप पर भी होगा। ना बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ वीजा फ्री टाइज चाहते हैं। ना हमें सच में इसके बारे में सोचना होगा, बहुत ज्यादा गहरा विचार करना होगा कि अगर बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया को इतना एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानती, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई मामलों में हेट्रेड सी दिखती है इंडिया के लिए, तो क्या ऐसे कंट्री के साथ हम वीजा फ्री रजीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बता दूं जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वहां पर वीजा फ्री रजीम की बात की जा रही है,
तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने हमेशा रहेगा रिगार्डिंग बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से बांग्लादेश के जो लोग हैं ये इंडिया को इतना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों आप कह सकते हैं कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, तो ये guys, जो ऑफर কি বলবো, তবে একটা কথা বলি, একই কথা বলি, বারবার ভিডিওতে একই কথা বলি যে হচ্ছে হ্যাঁ পার্সেন্টেজটা হয়তো বেশি হইতে পারে মানে ইন্ডিয়ান হেটার্স বাংলাদেশে আমাদের দেশে, কিন্তু পার্সেন্টেজ সেদিক থেকে আমাদের মতো অনেক মানুষ রয়েছেন যারা হচ্ছে ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করে। শুধু হিন্দু মুসলমান এটা যে বলে সে হচ্ছে বোকা, চরম বোকা। খেলা খেলা, ধর্ম ধর্ম। আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আমি, তারা তো হিন্দু না, আমি কেন সাপোর্ট করি? ভালো লাগে তাই। তো যে পার্সোনাল অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্টার থাকতেই পারে, কিন্তু ইন্ডিয়ার প্রতি এত বিদ্বেষ দেখায় নয়, এত হিংসা দেখায় নয়। হ্যাঁ, মানে হিংসা পতনের মূল, মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আর কেমন ছিল অবশ্যই জানাও, পার্সোনাল ওপিনিয়ন দাও। আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, একটু ঘুরে আসো, ভালো লাগবে। এই সনাতন ভাইকে তোমাদের সাপোর্টটা দরকার, অনেক দরকার, প্লিজ সাপোর্ট মি। সো নমস্কার, জয় শ্রীরাম, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন নিতে। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ, টাটা।